ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਥ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ 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 ਤੇਰਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਦਾਦ ਵਾਂਗੂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮਿੱਤ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦਾਦ ਵਾਂਗੂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮਿੱਤ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦਾਦ ਵਾਂਗੂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮਿੱਤ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦਾਦ ਵਾਂਗੂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮਿੱਤ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਗੋਲੀਅਤ ਜੇ ਤੂੰ ਪਲਾਂ ਚ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਗੋਲੀਅਤ ਜੇ ਤੂੰ ਪਲਾਂ ਚ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਗੋਲੀਅਤ ਜੇ ਤੂੰ ਪਲਾਂ ਚ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਗੋਲੀਅਤ ਜੇ ਤੂੰ ਪਲਾਂ ਚ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ 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 ਦੇਵੇਗਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੀਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੀਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੇਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਤੇਰੇ
तेरा छड्डे ना यहोवा कदे साथ तेनू जंगलां च रस्ता वखा देवेगा तेरा छड्डे ना यहोवा कदे हालेलुया हाँ तेरा छड्डे ना यहोवा कदे साथ तेनू जंगलां च रस्ते वखा देवेगा तेरा छड्डे ना यहोवा कदे साथ तेनू जंगलां च रस्ते वखा देवेगा वड्डे वड्डे पहाड़ां नूं हटा 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 देवेगा हाँ तेरा राई दे दाने जा विश्वास वड्डे वड्डे पहाड़ां नूं हटा देवेगा तेरा राई दे दाने जा विश्वास वड्डे वड्डे पहाड़ां नूं हटा देवेगा हाँ तेरा राई दे दाने जा विश्वास वड्डे वड्डे पहाड़ां नूं हटा देवेगा तेरा राई दे दाने जा विश्वास वड्डे वड्डे पहाड़ां नूं हटा हटा देवेगा तालियों के साथ कलीसिया हाँ दुखां ते बीमारियां च डोलना है जावी तू ना सिर चट्टान कर ओदे ते बनावी करे बीमारियां ते डोल कर जावी तू नासरी चट्टान करे ओदे ते बनावी तू दुखां ते मुसीबतां च डोलना है जावी तू ना सिर चट्टान कर ओदे ते बनावी तू दुखां ते मुसीबतां च डोल कर जावी तू नासरी चट्टान करे ओदे ते बनावी तू हाँ दुखां ते मुसीबतां च डोलना है जावी तू ना सिर चट्टान कर ओदे ते बनावी तू वड्डे वड्डे पहाड़ां नूं हटा देवेगा 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 वंडदा महक प्यारा दियो मेरा यीशु जेड़ा पाप मिटावे गुनाहगारा दियो मेरा यीशु जेड़ा वंडदा महके प्यारा दियो मेरा यीशु जेड़ा वंडदा महके प्यारा दियो मेरा यीशु वंडदा महके प्यारा दियो मेरा यीशु जेड़ा वंडदा महके जेड़ा पाप मिटावे गुनाहगारा दियो मेरा यीशु जेड़ा पाप मिटावे ओ मेरा यीशु ओ मेरा यीशु ओ ओ मेरा यीशु ओ मेरा यीशु
हाँ बदियों चो कट के ते नवा बनावे सब नवा कर देंदा है बदियों चो कट के ते नवा बनावे पत्थर दा दिल मास दा बनावे सब नवा कर देंदा है पत्थर दा दिल मास दा बनावे हाँ सब नवा कर देंदा है हाँ सब नवा कर देंदा हाँ सब नवा कर देंदा है देंदा जेड़ा गल नाल लावे बदकारा नू मेरा यीशु जेड़ा गल नाल लावे बदकारा नू मेरा यीशु जेड़ा गल नाल लावे ओ मेरा यीशु है ओ मेरा यीशु है ओ मेरा यीशु है ओ मेरा यीशु है ओ जेड़ा वंडदा महक प्यारा दियो मेरा यीशु है जेड़ा वंडदा महक जेड़ा पाप मिटावे गुनाहगारा दियो मेरा यीशु है जेड़ा पाप मिटावे गुनाहगारा दियो मेरा यीशु लहू ना खरीदे उन्हें मुल मेरा दे के मैनू पाक बनाया है लहू ना खरीदे उन्हें मुल मेरा दे के बनाया है रूहे पाक दे के मैनू तरनी बना के मैनू पाक बनाया है रूहे पाक दे के मैनू तरनी बना के मैनू रूहे पाक दे के मैनू तरनी बना के मैनू पाक बनाया रूहे पाक दे के मैनू तरनी बना के मैनू पाक बनाया हाँ मैनू पाक बनाया हाँ मैनू पाक बनाया हाँ मैनू पाक बनाया मैनू पाक बनाया जेड़ा पुत्र बनावे गुनाहगारा नू मेरा यीशु जेड़ा पुत्र बनावे हालेलुया जेड़ा पुत्र बनावे गुनाहगारा नू मेरा यीशु जेड़ा पुत्र बनावे गुनाहगारा जोड़ा वंड दा महक प्यारा दियो मेरा यीशु है
जेड़ा वंडदा महके जेड़ा पाप मिटावे गुनाहगारां दे ओ मेरा यीशु जेड़ा पाप मिटावे मेरा यीशु कलीसिया जैसे बाइबल में लिखा है कि उसने जगत को बनाने से पहले ही हमें चुन लिया था। हालेलुया। और वो हमसे इतना ज्यादा प्रेम करता है कि उसने हमारी शक्ल अपने हाथों के ऊपर खोदी रखी है। हालेलुया। और आए उसके प्यार के लिए उसका धन्यवाद करते हुए। हाँ जगत नू रचने तो पहला मैनू चुन के थे कौन बनाउंदा है जगत नू रचने तो पहला सानू चुन के जगत नू रचने तो पहला सानू चुन के कौन बनाउंदा है जगत नू रचने तो पहला सानू चुन के ते कौन बनाउंदा है अपने हाथों ते मेरी शक्ल हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद हो आज की हजूरी के लिए, आज के टाइम के लिए, आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारी और आपके जीवन में दिया। कलीसिया ये खुदावंद का ही फजल है, ये उसी का ही अनुग्रह है, ये उसी की दया है कि आज तुम उसके चरणों में बैठकर आनंद मना रहे हो कलीसिया, और परमेश्वर की हजूरी में बैठकर उसकी महिमा गा रहे हो, उसकी स्तुतियां गा रहे हो कलीसिया। क्योंकि वरना कितने लोग हैं संसार में जो दुखी हैं, जो प्रॉब्लम में हैं। बहुत सारे लोग तो हॉस्पिटल में कितने पैसे वेस्ट कर चुके, बहुत सारे लोग हालातों की वजह से मर रहे, दर दर धक्के खा रहे, भटक रहे इधर से उधर। लेकिन हमें कौन लेकर आया? परमेश्वर। तो हमें कितनी कदर करनी चाहिए, कितना धन्यवाद करना चाहिए, कितना थैंक्स करना चाहिए उस जीवते परमेश्वर का। क्योंकि अगर आज हम जो कुछ भी हैं तो सारा क्रेडिट उस परमेश्वर को जाता है, सारा श्रेष्ठ उसी को जाता है। उसी ने हमें चुना, इस काबिल समझा, अपनी हजूरी में लेकर आया, तो हमें उतना उसका कितना धन्यवाद करना चाहिए, कितना थैंक्स करना चाहिए। तो आइए फिर इस समय को उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो कीजिए अपनी आंखों को बंद, उठाइए अपने हाथों को और धन्यवाद कीजिए खुदावन का, और याद कीजिए उन बीते दिनों को जब तुम मरने वाले थे, हालात में थे, पीड़ा में थे, दुख में थे, तुम्हारा कोई सहारा ही नहीं था। तुम एक तरह से अपने आप को अकेला फील करते थे, और कैसे प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पास आए। जब गुड न्यूज आई, प्रभु का चानन तुम्हारे ऊपर प्रकट हुआ और तुम प्रकाशमान हुए और उसकी हजूरी में आए। सब जन अपने हाथों को हिलाते हुए धन्यवाद कीजिए। कहो परमेश्वर से, कहो पिता से कि पिता परमेश्वर तू महान है, तू सामर्थी है, खुदावन तू ही काबिल है। सचमुच पिता परमेश्वर, अगर आप ना होते परमेश्वर तो हमारी पिता परमेश्वर, यस पिता, ये जीवन पॉसिबल नहीं था पिता। आपने हमें बचाया पिता, ये तेरी दया से हुआ, तेरे उपकार से हुआ, जो आपने क्रॉस के ऊपर अपने प्रेम को प्रकट किया पिता परमेश्वर। आपने ऐसा प्रेम पिता प्रकट किया कि आपने इकलौते को हमारे लिए बलिदान कर दिया पिता परमेश्वर। और तेरा कलाम कहता है, तेरा वचन कहता है,
जो कोई उस परमेश्वर पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता वरना अनंत जीवन पाता है कलीसिया। और तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अंगीकार किया है और वो अनंत जीवन अब तुम्हारा है कलीसिया। तुम अनंत जीवन के वारिस बन चुके हो। कलाम कहता है, वचन कहता है, रोमियो की पुस्तक में लिखा है, यदि तू अपने मन से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे और अपनी जुबान से अंगीकार करे कि वो मुर्दों में से जी उठा है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो कलीसिया, खुदावंद के कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने कहा तुम अपने कर्मों से धर्मी नहीं गिने गए, तुम उस प्रेम के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा धर्मी गिने गए हो कलीसिया। जो उपकार परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है कलीसिया, तो हमें कितना धन्यवाद करना चाहिए उसके किए उपकार के लिए, उस धार्मिकता के लिए जो उसने क्रॉस के ऊपर हमारे लिए बलिदान देकर प्रकट की कलीसिया। तो अपने हाथों को वाइब्रेट करते हुए अंगीकार करो और कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, जैसे तेरा मन है पिता, भला मन पिता, वो भला मन खुदावंद हमारे अंदर आ चुका है पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, मैं सच्चा बिलीवर बन चुका हूँ, मैं सच्चा विश्वासी बन चुका पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, मैं अपने हित की नहीं पिता, दूसरों के हित की चिंता करने वाला बन चुका पिता। क्योंकि तेरा कलाम कहता है सच्चा विश्वासी वो होता है जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित की नहीं पिता, दूसरों के लिए सोचता है पिता। हम विश्वास करते पिता, हम सच्चे मसीह बन चुके, सच्चे मसीह बन चुके पिता। यस खुदावन, जो आपका स्वभाव है पिता, वही स्वभाव पिता हमारे अंदर आ चुका है, हमारे अंदर आ चुका है, हमारे अंदर आ चुका है पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर धनी होकर पिता कंगाल बने पिता, ताकि हम धनी हो जाए पिता परमेश्वर। आपने मार खाई, कोड़े खाए पिता मेरे अपराधों के लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप घायल किए गए, मेरी बदियों के लिए आप कुचले गए, मेरी ताड़ना के लिए पिता आपने खुदावंद मेरी शांति के लिए आपके ऊपर ताड़ना हुई पिता, ताकि पिता आपके कोड़े खाने से, मार खाने से मैं चंगी हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं पिता। मैं विश्वास करता पिता परमेश्वर, आपके इस क्रूसिफाई के द्वारा पिता मैं डिलीवर हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं, मैं फ्री हो चुका पिता। मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता पिता परमेश्वर, तेरी ये पवित्र कुर्बानी पिता मुझे आजाद कर चुकी है हर पीड़ा से, हर दर्द से, हर तकलीफ से पिता, टोटली पिता परमेश्वर, हर प्रॉब्लम से छूट कर पिता मैं शिफा पा चुका पिता। आपने ऐसा कर दिया है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता पिता, आप ऐसा कर चुके पिता। तेरा कलाम कहता है पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, आपने कहा आप अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ते पिता, आप उनके साथ होते हो पिता, आप आगे पीछे से घेर कर रखते हो पिता। तेरा कलाम कहता है, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, आप अपने स्वर्गीय दूतों को हमारे लिए आज्ञा देते हो पिता कि जिस जगह हम जाएं पिता वो हमारी प्रोटेक्शन करे पिता। हम बिलीव करते, हम अंगीकार करते पिता, आपके लाखों करोड़ों स्वर्गीय दूत पिता हमारे संग है पिता। तेरा कलाम तो ये कहता है, तेरा वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ पिता। तेरे कलाम में लिखा है पानी तुम्हें डुबो ना पाएंगे, आग तुम्हें जला ना पाएगी, चाहे तू पानी के बीच में से भी गुजरेगा तो तुम्हारी कोई हानि ना होगी, यदि तू आग के बीच में से भी गुजरेगा तो तेरा कोई लॉस ना होगा पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरा बढ़ाया हुआ हाथ पिता तेरे लोगों को प्रोटेक्ट करता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता पिता। तेरा अनुग्रह पिता पूरी पृथ्वी के ऊपर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। जैसे कलाम कहता है, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर कि पिता जैसे आपने हमें चुना, संसार की भीड़ से अलग किया पिता, उसी तरह से पिता पृथ्वी पर जितने भी लोग दुखी, बीमार, लाचार है पिता, हम उनके लिए भी मांगते पिता परमेश्वर। यस पिता, आपका आत्मा उन्हें भी लेकर आ चुका है पिता परमेश्वर, और आप हमें भी यूज कर चुके हो। कलीसिया जैसी खुदा के दास हमें सिखाते, उन्होंने हमें सिखाया है कि अपने लिए स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो। और स्वर्ग पर धन इकट्ठा करने का क्या मतलब है?
अपने लिए रूहों को कमाना, गुड न्यूज देना, रूहों को बचाने के लिए सुसमाचार देना, तो तुम अंगीकार करो, तुम कहो पिता से, तुम कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर सुसमाचार देने वाला मन पिता मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है पिता, आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पिता। तेरा कलाम कहता है पिता, तेरे वचन में लिखा है पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह बनो पिता, तो मैं आपका वो गवाह खड़ा हो चुका हूँ, मैं आपकी वो गवाह खड़ी हो चुका पिता परमेश्वर। जैसे पिता 12 चेले खुदावन तेरे लिए जिए पिता परमेश्वर, उन्होंने गुड न्यूज दी पिता परमेश्वर। मैं बिलीव करती हूँ, मैं बिलीव करता हूँ खुदावन, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर गुड न्यूज कैसे देनी है पिता, ये समझिए बुद्धि पिता आपका आत्मा मेरे अंदर डाल चुका है, आपका आत्मा मेरे अंदर डाल चुका है पिता। मैं जानता हूँ पिता कि यस पिता परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर पिता, पूरे संसार में पिता विश्वासी भाई बहन पिता गुड न्यूज दे रहे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपके आने की खुशखबरी पूरी दुनिया में बांटी जा रही है पिता। मैं भी खुदावंद इस पवित्र सेवा को करना चाहता हूँ पिता, आप मेरी समझ खोल चुके हो, मेरी बुद्धि खोल चुके हो पिता। जैसे आपके दास ने सिखाया है कि रूहों को बचाओ पिता, जैसे 12 चेलों ने पिता परमेश्वर अपनी जिंदगी से आपके नाम को ऊंचा किया, रूहों को बचाया, गुड न्यूज दी पिता। उन्होंने बैंते खाई, मारे खाई, डंडे खाए, लाठियां खाई, फिर भी वो नहीं डरे पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर उनके अंदर आपके लिए इतनी ज्यादा प्यास थी, इतना ज्यादा मन था। तो कलीसिया आज तुम चेक करो, अगर तुम्हें कोई छोटी सी बात कह देता है तो तुम कैसे फील करते हो? तुम इंसल्ट फील करते हो कि मुझे गुड न्यूज नहीं देनी, किसी ने मुझे ऐसे बोल दिया। तो चेलों की ओर देखो, उन्होंने लाठियां खाई, डंडे खाए, उनके ऊपर पथराव हुआ। क्या उन्होंने प्रभु की गुड न्यूज देनी बंद की? बिल्कुल नहीं, उन्होंने और भी ज्यादा खुदा के काम को करने के लिए गुड न्यूज बांटी कलीसिया। तो तुम्हारे अंदर भी ये मन होना चाहिए, कहो पिता से कि पिता परमेश्वर मैं भी प्रभु यीशु मसीह आपके जन्म की गुड न्यूज लोगों के बीच में लेकर जा चुका पिता। जिस जगह पर अंधकार है पिता, लोग दुखी, बीमार है, लाचार है पिता, जहाँ पर लोग हालातों में पड़े पिता, नाश होने वाले पिता, हम तो नहीं जानते पिता, हम नॉर्मल से इंसान है पिता, लेकिन तेरा रूहे पाक पिता जो सब कुछ जानता है पिता, आप हमें उन लोगों के बीच में लेकर जा चुके पिता। तेरा आत्मा पिता परमेश्वर मुझे उन लोगों के बीच में इस्तेमाल कर चुका है, इस्तेमाल कर चुका है, इस्तेमाल कर चुका है। यस जीसस, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। हम धन्यवाद करते, हम थैंक्स करते प्रभु यीशु मसीह, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। हम धन्यवाद करते, आपके जैसा मन हमारे अंदर आ चुका है पिता, चेलो जैसी दलेरी आ चुका है। कलीसिया मांगे वो दलेरी, वो मन, और कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर मेरे अंदर आत्मिक है आप बढ़ चुका है पिता, आत्मिक दलेरी बढ़ चुके पिता। जैसे आपने यहोशू से कहा कि यहोशू है आप बांध दृढ़ हो जा, तो पिता परमेश्वर मैं मांगती हूँ पिता वो आत्मा की दलेरी पिता, वो आत्मा का है आप पिता मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जब आपने अपने दास यहोशू को वर्ड दिया कि शहर पन्ना के 7 चक्कर लगाना और 7वीं बार में जय जयकार के नारे लगाना, तो जैसे उसने पिता तेरे वचन को माना तो वो दीवार पिता, यस पिता परमेश्वर, जो मनुष्यों के लिए अनहोना थी पिता, लेकिन जैसे ही पिता उन्होंने वचन पूरा किया तो वो दीवार गिर गई। तो यस कलीसिया, जो वचन परमेश्वर के दास ने आत्मा के द्वारा तुम्हें दिया कि रूहों को बचाओ और अपने साथ लेकर आओ, तो जितने लोग इस वचन को पूरा करेंगे तुम्हारी जिंदगी से भी हालातों की दीवारें गिर जाएंगी, बीमारियों की दीवारें गिर जाएंगी, लाचारियों की दीवारें गिर जाएंगी। कलीसिया तुम सामर्थ से भर जाओगे, बड़े बड़े कामों को, बड़ी बड़ी गवाहियों को
अपने जीवन में देखोगे कलीसिया, तो सब जन हया में आ जाइए, दलेरी में आ जाइए और कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ तेरी पावर पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर रही है पिता, मेरी जिंदगी में काम कर रही है पिता परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है पिता, यस पिता, आपने मुझे अपना आत्मा दे दिया है पिता, तेरा आत्मा मेरे अंदर है पिता परमेश्वर। यस पिता, यदि तेरा आत्मा मेरे अंदर है तो मैं नॉर्मल कैसे रह सकता हूँ। यस पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है, तेरा वचन कहता है पिता, आप अपना वचन भेजकर बीमारों को चंगा करते हो, रोगियों को चंगा करते हो पिता। कल वो वचन पिता तेरे दास के मुख से जब आएगा पिता, तो मैं सामर्थ से भर जाऊंगा, पावर से भर जाऊंगा पिता। कल बीमारी जाती रहेगी, हल्ला जाता रहेगा कलीसिया, क्योंकि कलाम कहता है परमेश्वर अपने दासों का, अपने नबियों का मुख यूज करते और अपने लोगों को डिलीवर करते, चंगा कर देते। कल तुम्हारे हालात का बिस्तर पलट जाएगा कलीसिया, कल बीमारियों की दीवारें टूट जाएंगी कलीसिया। जितने लोग पूरे दिल से, पूरे मन से परमेश्वर की सामर्थ को अपने अंदर फील करेंगे, देखना कल परमेश्वर का आत्मा जब खुदा के नबी के मुख से बोलेगा तो तुम सामर्थ से भरोगे, तुम्हारे जीवन बदलेंगे। कल तुम्हारे लिए भविष्यवाणियां होंगी, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें प्रोफेटिक वर्ड देगा, कल की गवाहियों से तुम्हारे अंदर हया बढ़ेगा कलीसिया। और भी ज्यादा आत्मा में तेज हो जाओ, अपने मन को लगाओ और कहो परमेश्वर से, कहो पिता से, पिता तेरी पावर बढ़ चुके पिता। यस खुदावन, जो आपकी खुदावन ग्रेस पिता, सामर्थ पिता आपके भवन में काम करती है पिता परमेश्वर, तेरी हजूरी में काम करती है पिता। मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर, मैं मांगता हूँ जितने लोग ऐसे अंगीकार कर रहे हैं, अपने लिए हाथों को हिला हिला कर मांग रहे, कह रहे कि पिता मेरा मन खुल चुका है पिता। यस खुदावन, कल की सामर्थ पिता मेरे अंदर से होकर निकले पिता, आप ऐसा कर चुके पिता। हम बिलीव करते पिता परमेश्वर। यस पिता, जैसे कलाम में लिखा है, जब आकाश से वर्षा आती है तो वो सेम वापस नहीं जाती, वो पृथ्वी को हरा भरा कर देती है, उपजाऊ बनाती है पिता। उसी तरह पिता जब तेरे दास के मुख से वचन आता है पिता, तो वो वचन पिता तेरे लोगों को शांति से भर देता है, हयात से भर देता है, दलेरी से भर देता है। मैं विश्वास करती हूँ पिता, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, मैं बिलीव करती हूँ पिता, मैं बिलीव करता हूँ खुदावंद यीशु के नाम से पिता। मेरा विश्वास है पिता, कल आप अपने दास को मेरे लिए सामर्थ से भर दोगे पिता। कल मेरी बीमारी का लास्ट दिन है खुदावंद, मैं तेरे आत्मा के फ्लो को फील करूंगा, मैं तेरे आत्मा से भर जाऊंगा पिता परमेश्वर, तेरी दलेरी से भर जाऊंगा पिता परमेश्वर। शरीर की बातें आउट हो जाएंगी, शरीर की बातें आउट हो जाएंगी पिता, मैं आत्मा में कन्वर्ट हो जाऊंगा, आत्मा से भर जाऊंगा पिता परमेश्वर। आत्मा के वचन 24 घंटे मेरे मन में चलेंगे पिता। हर दुर्बल विचार, हर पाप का विचार मेरे अंदर से आउट हो जाएगा, आउट हो जाएगा, आउट हो जाएगा पिता, यीशु के नाम से पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता। तेरा कलाम कहता है पिता, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, तेरी हजूरी में आनंद की भरपूरी है पिता। ये आनंद पिता मेरी जिंदगी में और भी ज्यादा बढ़ चुका है, और भी ज्यादा बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता। कितनी गवाहियां तो पिता मैं अपनी खुली आंखों से देखता हूं पिता, जब तेरे दास हाथ रखते पिता, लोगों के लिए वर्ड देते पिता, जिंदगियां बदल जाती है पिता। मैं अंगीकार करता पिता, मैं विश्वास करता खुदावन, कल का वचन पिता मेरे मन को नया बना देगा पिता परमेश्वर। जैसे तेरे कलाम में लिखा है, तुम्हारे मन के बदलने के साथ तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो यस पिता, कल के वचन को लेने के बाद मैं सेम नहीं रहूंगा पिता, मेरा उठना बैठना बदल जाएगा, मेरा जीवन बदल जाएगा पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। सब जन अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने रखो और अंगीकार करो और कहो पिता से, जो तुमसे नहीं हो रहा कलीसिया, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी आदत है, तुम मोबाइल को यूज करते हो, या तुम ड्रिंक करते हो, कोई नशा करते हो, या तुम्हारी जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज, ऐसी गलत आदत है, तुम्हारा ऐसा गलत स्वभाव है, तो तुम रखो पिता के सामने। जो तुमसे नहीं हो रहा, तुम पिता से कहो, पवित्र आत्मा जी से कहो कि
पवित्र आत्मा जी आप मेरे मददगार हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मददगार हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मददगार हो, पवित्र आत्मा जी आप मुझे अंदर से बदल चुके हो, बदल चुके हो, बदल चुके हो। अगर यदि तुम ज्यादा मोबाइल यूज करते हो, तुम एडिक्ट हो चुके हो, तो तुम रखो पिता के सामने और कहो पिता से, पिता परमेश्वर, यस पिता मेरी बुद्धि के ऊपर, मेरी समझ के ऊपर पिता तेरे आत्मा का कंट्रोल आ चुका है, तेरी आत्मा का कंट्रोल आ चुका है पिता। आपका आत्मा मुझे चलाए पिता, आपका आत्मा मुझे समझ से, बुद्धि से, आपकी ज्ञान की बातों से भर चुका है पिता। कितनी गवाहियों को, कितनी टेस्टमनी को पिता मैं सुनती हूँ, मैं सुनता हूँ परमेश्वर यीशु के नाम से पिता। जब लोगों के मन नॉर्मल होते पिता, मैं देखता हूँ लोगों की लाइफ से, मैं सीखता हूँ पिता। जब लोग मन नॉर्मल हो जाते, लोगों के मन नॉर्मल हो जाते पिता, तो शैतान उनकी लाइफ में जुक्तियां बनाता है पिता। जब वो तेरे कलाम को हल्के से लेते, यस पिता, जब वो तेरी हजूरी को हल्के से लेते पिता, तो वो जुक्तियों में फंस जाते पिता। कैसे पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, उनका मन उन्हें दोष देता है पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता पिता और अपने मन को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, तेरे हाथों में सौंपता पिता, समर्पित करता पिता। मेरा मन खास बन चुका है, 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 मेरा मन खास बन चुका है पवित्र आत्मा जी, मेरा मन खास बन चुका है पवित्र आत्मा जी। मेरा मन आप में लीन हो चुका है, आपसे बातें करता, ना मैं अकू ना थकू। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। यस परमेश्वर, हम बिलीव करते खुदावन, यस खुदावन, 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 आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हमारे मन की आंखें खुल चुके पिता, हमारे मन की आंखें खुल चुके पिता, जैसी यहोशू की खुली, पौलुस की खुली पिता, यस पिता परमेश्वर, उसी तरह से पिता हमारे मन की आंखें खुल चुकी है, हमारे मन की आंखें खुल चुकी है यीशु मसीह के नाम से पिता। आपने ऐसा कर दिया। यस खुदावंद, आप ऐसा कर चुके हो। सबसे अधिक से अधिक प्रार्थना अपने मन के लिए कीजिए, कहिए पिता से, रखिए पिता के सामने और कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते पिता, हम अंगीकार करते परमेश्वर जी, आपका आत्मा हमें खास बना चुका है। यस पिता परमेश्वर, कभी भी हम आपके किसी वचन को नॉर्मल ना ले, हल्के से ना ले पिता। यस पिता परमेश्वर, हम आपके वचनों को पूरा करने वाले बन चुके पिता। हम सीखते पिता आपके दास की लाइफ से पिता, आपके दास पिता जो आपके कलाम पर चलते, आपके वचनों को पूरा करते पिता। आप उन्हें ऊंचा कर रहे हो, आप उन्हें बढ़ा रहे हो, उनकी लाइफ से पिता हम सीख रहे पिता। यस पिता परमेश्वर, यस पिता मांगते पिता, हम भी आपके आज्ञाकारी बन चुके, आपके अधीनगी करने वाले बन चुके पिता। जैसे आपके दास पिता आपके अधीनगी करते पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञाकारी करते पिता, हम भी आपके आज्ञाकारी में बढ़ चुके पिता। वो आज्ञाकारी पिता जो यहोशू ने की पिता, और आपने उसके लिए वर्ड दिया। आपने कहा यहोशू, यदि तू चित्त लगाकर चौकसी से मेरे वचनों को पूरा करेगा तो मैं पृथ्वी के सब लोगों में से तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा। तो यस पिता परमेश्वर, मैं भी यहोशू की तरह पिता, पौलुस की तरह पिता, जब तेरे दास पौलुस ने पिता तेरी आज्ञाकारी की, तेरी अधीनगी की पिता, तो आपने उसे तीसरे स्वर्ग में उठा लिया पिता। यस खुदावन, उसने बड़े बड़े दर्शन देखे पिता परमेश्वर, बड़ी बड़ी आशीषों को रिसीव किया पिता। हम भी विश्वास करते खुदावन, हम अंगीकार करते पिता, आपकी सामर्थ पिता हमारे अंदर बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम बिलीव करते खुदावंद, 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 आपका आत्मा पिता परमेश्वर हमारे अंदर पिता बहुतायत से काम कर रहा है पिता। आपका आत्मा बहुतायत से हमारे अंदर काम कर रहा है पिता। आपका आत्मा हमें उभार रहा है आपके कलाम को पूरा करने के लिए, गुड न्यूज देने के लिए पिता। आपका आत्मा हमें उभार रहा है पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता। हम विश्वास करते पिता, हम अंगीकार करते खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, आपके कलाम को पूरा करने वाला
शुद्ध मन पिता, पाक साफ मन पिता आपने हमें दे दिया है, आपने हमें दे दिया है, आपने हमें दे दिया है। कलीसिया उसके वायदों को याद कीजिए, हर ढीलेपन को डांटिए, चौकस हो जाइए। जैसे पौलुस कहता है, परमेश्वर का प्रिय दास पौलुस कहता है, क्या अमीरी, क्या गरीबी, क्या गर्मी, क्या सर्दी, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? तो सर्दी क्या है, मौसम क्या है जो तुम्हारे मन को नॉर्मल कर दे? कलीसिया अपने ऐसे दुर्लभ मन को डांटो, ऐसे विचारों को डांटो और आत्मा में गर्म हो जाओ और कहो पवित्र आत्मा जी से कि पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में काम कर रहे हो। 5 बार सभी जन कहिए, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में काम कर रहे हो। कलाम में लिखा है, वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं, बोलने वाले तुम नहीं होंगे, पिता का आत्मा होगा। तो वो स्वर्गीय आत्मा कलीसिया तुम्हारे अंदर है। हम में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ और जय जयकार करो, स्तुति गाओ, क्योंकि इसी महीने में वो यहूदा का शेर पृथ्वी पर आया था। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था कलीसिया, और अंधकार दूर हुआ था। तुम कहो पिता से, पिता तेरी सामर्थ पिता बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके पिता, आप ऐसा कर चुके स्वर्गीय परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता, हम धन्यवाद करते पिता, तेरी पावर बढ़ चुका है, तेरे आत्मा का फ्लो बढ़ चुका है, तेरे आत्मा का फ्लो बढ़ चुका है, तेरे आत्मा का फ्लो बढ़ चुका है पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा का फ्लो बढ़ चुका है पिता, तेरे आत्मा का फ्लो बढ़ चुका है पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हम बिलीव करते पिता, तेरी जिंदा सामर्थ पिता परमेश्वर, वो सामर्थ पिता परमेश्वर जो मनों को बदल देती है पिता, हृदय को पिता चेंज करती है पिता, वो सामर्थ पिता जिस सामर्थ के द्वारा पौलुस का मन चेंज हुआ पिता, वो सामर्थ पिता तेरे भवन में काम कर रही है पिता, वो सामर्थ हमारे अंदर उतर चुके, उतर चुके, उतर चुके हैं। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पिता। तेरा कलाम कहता है पिता, तेरा वचन कहता है खुदावन, जो अन्य अन्य भाषा में बातें करते वो मनुष्यों से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करते। तो कलीसिया अपने लिए मांगिए खुदावन से बातें करने वाला मन, कहिए पिता से, पिता मैं घंटों बताऊं पिता, समय का मुझे बिल्कुल पता न चले पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे अगुवाई करे पिता, तेरा आत्मा मुझे समझ दे, बुद्धि दे पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा पिता मैं चलने वाली बन चुकी हूँ, चलने वाला बन चुका। और याद कीजिए उसकी प्रतिज्ञाओं को, उसके वायदों को याद कीजिए और कहिए परमेश्वर से, कहिए खुदावन से, पिता तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, शेरों के बच्चे भूखे रह सकते पिता, तेरे खोजियों को कभी अच्छी वस्तु की घटी नहीं रह सकती पिता, ये तेरे कलाम में लिखा है पिता। मैं तेरा बेटा हूँ पिता, तेरा धर्मी जन हूँ पिता, मेरे जीवन में कमियां नहीं रह सकती, घटियां नहीं रह सकती पिता, तेरे आत्मा के द्वारा पिता मैं परिपूर्ण हो चुका हूँ, तेरे आत्मा के द्वारा पिता मैं बुद्धि में परिपूर्ण हो चुका हूँ, आत्मिक समझ में परिपूर्ण हो चुका हूँ, तेरे कामों में परिपूर्ण हो चुका पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया परमेश्वर, हम बिलीव करते हैं खुदावन, खुदावन, खुदावन यीशु मसीह के नाम से पिता। यस पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है पिता, जो आपका पहला हुक्म है पिता, जो आपकी पहली आज्ञा है पिता, वो है प्रेम खुदावन। यस पिता, जैसे आपने पिता पृथ्वी के हर इंसान से आगापी प्रेम किया खुदावन, वो प्रेम खुदावन हम भी अपने अंदर मांगते पिता, वो आगापी प्रेम पिता हमारे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता, आपने ऐसा कर दिया है खुदावन। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आपके बड़े अनुग्रह के लिए पिता, तेरी दया के लिए पिता मैं तेरा धन्यवाद करता पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ के लिए पिता मैं तेरा धन्यवाद करता पिता परमेश्वर। तू अगापी प्रेम करने वाला परमेश्वर है,
तू माँ से भी ज्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, आप अपने चुने हुआ को कभी भी लज्जित नहीं होने देते, कभी शर्मिंदा नहीं होने देते पिता परमेश्वर। जो आपके ऊपर ईमान करते पिता, वो कभी पीछे नहीं रह सकते पिता। आपने उन्हें पूछ नहीं किंतु सर ठहराया है पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता, मैं विश्वास करता पिता, मैं आत्मिक विश्वास में बढ़ चुका पिता। आत्मिक विश्वास खुदावंद मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता। आत्मा की दलेरी मेरे अंदर बढ़ चुकी है, आत्मा का हयाम मेरे अंदर बढ़ चुका है पिता। 24 घंटे पिता मेरे मन में आप ही के वचन चले पिता, आपकी गवाहियां चले पिता। सुख पारणम निश्चि में पिता मैं बड़े बड़े कामों को देखता पिता, कैसे आप अपने दास को यूज कर कर पिता बड़ी बड़ी टेस्टिमनी बनाते पिता। लोग चंगे होते, लोगों के मन बदलते पिता, लोग बड़े बड़े हालातों से छूट जाते पिता, बीमारियां जाती रहती है पिता। आपके दास की प्रार्थनाओं के प्रभाव से पिता बड़े रिजल्ट आते पिता। मैं बिलीव करता हूँ खुदावंद कल मेरी लाइफ में भी पिता तेरा आत्मा पिता बहुत ताइज से काम कर चुका है पिता परमेश्वर। आप अपने दास को पिता मेरे लिए कल यूज कर चुके पिता, इस्तेमाल कर चुके पिता, मुझे सामर्थ्य से भर चुके पिता परमेश्वर। तेरे कलाम भी लिखा है पिता, आपने कहा तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। तो खुदावंद मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता पिता कल मैं आपकी सामर्थ्य को देखने जा रही हूँ पिता। कल तेरी सामर्थ्य पिता मेरी जिंदगी को भी बदल चुकी है पिता, मेरी लाइफ को बदल चुकी है पिता। आपकी सामर्थ्य पिता मेरे अंदर प्रकट हो चुके है, प्रकट हो चुके है, प्रकट हो चुके है पिता। आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। सब जन के लिए लगाइए अपने मन को और अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर सचमुच पिता परमेश्वर, कल की मीटिंग परमेश्वर पिता, कल की पावरफुल हजूरी पिता हमारे जीवन को और भी ज्यादा परिफुल्लित कर चुकी है। आज कलीसिया अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से मांगे उस रिश्ते को और कहिए खुदावन से कि परमेश्वर पिता मेरा रिश्ता खुदावंदा आपके साथ बहुत मजबूत हो चुका है। परमेश्वर पिता मेरा रिश्ता खुदा आपके साथ बहुत मजबूत हो चुका है। आज कलीसिया मांगे परमेश्वर से, परमेश्वर को कहिए कि परमेश्वर आज मैं आपसे मांगती हूँ, परमेश्वर आज मैं आपसे मांगता हूँ खुदावंदा सचमुच परमेश्वर पिता मेरा प्रेम परमेश्वर पिता मेरा रिलेशन खुदा आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता जैसे अब्राहम का पिता परमेश्वर आपके साथ रिश्ता था परमेश्वर पिता, सचमुच परमेश्वर उसने कैसे निराशा में भी पिता अपनी आशा को बनाए रखा परमेश्वर पिता। सचमुच पिता उसने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया परमेश्वर, जो प्रतिज्ञा जो वाचा आपने उसके साथ बांधी थी। आज कलीसिया आप भी अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा मेरा भी वैसा रिश्ता पिता आपके साथ मजबूत हो चुका है पिता, आपके साथ मजबूत हो चुका है पिता, आपके साथ मजबूत हो चुका है। कलीसिया अंगीकार करते जाइए क्योंकि सचमुच कलीसिया एक एक जन चाहे वो कोई भी है वो परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। आज अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से, प्रभु यीशु से कहे कि हे स्वर्गीय परमेश्वर हम आपके बिना कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिता। आज हम प्रार्थना करते पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी बड़ी पावर आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर पिता ये क्राइस्ट मंथ में कार्य कर चुकी परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, आपने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आज कलीसिया आप भी विश्वास करें, चाहे आप यहाँ मौजूद हो चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो, आज एक दृढ़ता के साथ एक स्ट्रॉन्ग मन के साथ विश्वास करें। और यदि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की बीमारी है, किसी भी प्रकार का हालात है, किसी भी प्रकार की चिंता है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आज अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु मैं इस मंथ में पिता बड़ी गवाही के साथ आ चुकी, प्रभु मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुका। आज कलीसिया अंगीकार करते चाहिए
मांगे अपनी चंगाई के लिए, अपनी डिलीवरेंस के लिए। वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा है, क्योंकि कलीसिया वचन में लिखा कि धर्मी जन के निवेदन, धर्मी जन की प्रार्थनाएं जो परमेश्वर के आगे वो करते हैं कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो सोचो कलीसिया, जो आप परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो कैसे व्यर्थ जाएगी। आज अंगीकार करें, जितना भी कुछ मिनट से आपके पास जो कुछ भी आप चाहते हो, आज तेज अंगीकार करो और तेज चाहत करो और कहो प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती प्रभु ये मेरे लिए हो चुका है, ये मेरे लिए हो चुका है। कलीसिया, यदि आप आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो आप कुछ पल के लिए अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु मसीह, मैं आत्मा में बढ़ चुकी हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी में बढ़ चुकी हूँ, मैं आत्मा में बढ़ चुकी हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी में बढ़ चुकी हूँ, मैं आत्मा में बढ़ चुका हूँ, मैं पवित्र आत्मा में बढ़ चुका हूँ। आज कलीसिया मांगे परमेश्वर से और कहिए परमेश्वर पिता, मैं आप में बढ़ चुकी हूँ, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर चुका है, 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 मेरे अंदर काम कर चुका है। कलीसिया खुद की चंगाई के लिए, खुद की गवाही के लिए अंगीकार करे और कहिए प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ, मैं फेथ करती प्रभु, मैं गवाही के साथ आ चुकी हूँ, मैं गवाही के साथ आ चुका हूँ, मैं गवाही के साथ आ चुकी हूँ, मैं गवाही के साथ आ चुका हूँ। कलीसिया, यदि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी है, किसी भी प्रकार का हालात है, तो बाइबल में लिखा कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा भजन सहायता में कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो कभी शर्मिंदा ना होगे, वो लज्जित ना होगे। और आज कन्फेस करे, अपनी जुबान से अंगीकार करे और कहिए प्रभु यीशु, हर प्रकार की शर्मिंदगी ये आउट है, 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 ये आउट है। यीशु मसीह के नाम से मेरी बीमारी, मेरी कर्जा, मेरी शर्मिंदगी, मेरी लाचारी, मेरी गरीबी, मेरी कमजोरी आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह, आपकी बड़ी पावर पिता, आपकी बड़ी सामर्थ पिता, जो मुर्दों को जिलाती है, जो पानी को हवा में थमा देती है, जो पानी के लाल समुद्र के दो भाग कर देती है, वो पावर, वो सामर्थ मेरे जीवन में काम कर चुके हैं, मेरी लाइफ में काम कर चुके हैं, मेरे जीवन में काम कर चुके हैं, मेरी लाइफ में काम कर चुके हैं। कलीसिया, वचन में लिखा उत्पत्ति में कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ये आकाश, ये पृथ्वी, ये फूल, ये चांद तारे, सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड रचा गया कलीसिया, और परमेश्वर ने आपको भी रचा। तो सोचो कलीसिया, जो परमेश्वर ये कुल कायनात का मालिक है, तो वो कैसे अपनी संतान को निर्बल रहने देगा, कैसे अपनी संतान को बीमारियों में रहने देगा। आज अंगीकार करो, क्योंकि आप उस कुल कायनात परमेश्वर की अपने रचयिता के बेटे और बेटियां हो, तो आप कैसे बीमारी में रह सकते हो। आज अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, जो परमेश्वर पिता 2025 साल पहले पिता, आपने मेरी बीमारियों को खत्म कर दिया, आपने मेरी गरीबी को खत्म कर दिया, आपने मेरी शर्मिंदगी को खत्म कर दिया, आपने मेरी कमजोरी को खत्म कर दिया। मैं बिलीव करती हूँ पिता, मेरे जीवन में पिता ये काम प्रकट हो चुके, ये काम प्रकट हो चुके, ये काम प्रकट हो चुके। खुदावंद यहोवा, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ मेरे जीवन में काम कर रही है। कलीसिया, अब कुछ समय के लिए अंगीकार करे और कल के मीटिंग के लिए अंगीकार करें, परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं अपने पूरे मन से पिता, जैसे आपके वचन में लिखा परमेश्वर पिता कि पूरे मन के साथ, पूरी जान के साथ, पूरी अकल के साथ मुझसे प्रेम कर। आज प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर, मैं पूरे मन के साथ परमेश्वर पिता, पूरी जान के साथ पिता और पूरी बुद्धि के साथ पिता, पूरी सेंस के साथ पिता,
आपको प्रेम करने वाली बन चुकी हूँ, आपको प्रेम करने वाला बन चुका, आपको प्रेम करने वाली बन चुकी हूँ, आपको प्रेम करने वाला बन चुका। कंटिन्यू कंटिन्यू कलीसिया कहते चाहिए और कहिए, प्रभु मैं आपको प्रेम करने वाली बन चुकी हूँ, मैं आपको प्रेम करने वाला बन चुका। और परमेश्वर पिता, मैं कल की खास मीटिंग के लिए परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना करता परमेश्वर, कल की मीटिंग पिता, कल के वचन पिता, कल की गवाहियां पिता, कल की वर्शिप पिता, कल का वचन, कल की प्रेयर्स पिता मेरे जीवन को टोटली बदल चुकी है, टोटली चेंज कर चुकी है। परमेश्वर, हम आपके दास के लिए भी प्रार्थना करते पिता, जब कल आप पिता अपने दास के मुख को इस्तेमाल करो पिता, वो वचन पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम कर चुके पिता, कल आप अपने दास को हमारे लिए यूज कर चुके, हमारे लिए इस्तेमाल कर चुके। प्रभु यीशु, जो कुछ हमने प्रार्थना में मांगा है वो हमारे लिए पूरा हो चुका है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। सब जन तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कलाम कहता है प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्या कहते हैं? वो कहते हैं सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। जीवन अगर चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, सभी ध्यान से सुनिए, चुप हो जाइए और ध्यान से सुनिए। जितने भी यहाँ पर बैठे आंखें खोलिए, ध्यान से शांत होकर सुनिए। खुदावंद के कलाम में लिखा है परमेश्वर क्या कहते, खुदावंद हमें मैसेज देते, हमें कहते हैं अपने वचन के द्वारा कि सबसे ज्यादा रक्षा अपने मन की करना। क्योंकि अगर बेस्ट जीवन चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, तो वो कैसे आएगी? अगर तुम्हारा मन अलर्ट होगा, अगर तुम्हारे मन में पवित्र आत्मा जी काम करेंगे, क्योंकि पाप भी कहाँ काम करता है? मन में ही काम करता है। कहाँ काम करता है? मन में। पाप अपना मैसेज डालता है मन में, तो परमेश्वर अपना वचन डालते मन में, वो अपने वचन के द्वारा परमेश्वर बात कर। और जो शैतान है वो कई तरह के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें देकर आपसे बात करने की कोशिश करता। और आपने ध्यान रखना, अलर्ट रहना, चौकन्ने रहना। और खुदावंद के कलाम में लिखा, परमेश्वर ने कहा अपने सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। तो कैसे बांधने हथियार, कैसे तैयारी करनी? आत्मा में आकर। जब एक आर्मी सोल्जर होता है तो क्या जब वो लड़ाई के लिए जाता है तो अपना हथियार घर पर ही छोड़ जाता है? नहीं, तैयारी के साथ जाता है। तो तुम्हें भी एक तैयारी करनी है कल की मीटिंग के लिए। क्या करनी है? तैयारी, एक तैयारी, एक फोकस के साथ, एक मन के साथ। जब आप खाना खाओगे, जितने लोग यहाँ पर हैं, तो आपने खाना खाने के बाद फिर से बैठना है, ताकि कल की जो मीटिंग है उसमें जो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वचन दे, उस वचन में बड़े बड़े फल तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो। तो आपने खाना खाने के बाद फिर से प्रार्थना में बैठना और अपने मन के लिए अधिक से अधिक प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर का आत्मा कल तुम्हें छुए, तुम्हें अंदर से बदले, जो परमेश्वर चाहते। जैसे बाइबल में लिखा कि तुम होने चाहिए वैसे तुम दिखो, नजर आओ कलीसिया। और परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया दृष्टि और भी ज्यादा बढ़ती जाए। हालेलुया। तो ठीक है, कल की मीटिंग में मॉर्निंग प्रेयर पिलर में